Welcome to my channel, Best English Grammar Classes. As all we know, we are doing only grammar basics things. So today I have taken a new thing, which is not a new for you, I think so. Many of you will know how to use it and how to do it. It is words often confused and misused. There are words, some words are there which the pronunciation is the same, but the meaning are totally changed and the spellings are totally changed. But the pronunciation same. So we are going to discuss about that today. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। आपको मालूम है कि हमारा सिर्फ काम जो है ग्रामर के बेस के ऊपर ही हम करते हैं। आज मैं एक नई चीज़ लेकर आई हूँ आपके लिए। हो सकता है आप बहुत लोगों को पता भी हो, जो 9th-10th में है उनके लिए आता भी है, उन्होंने किया भी होगा। क्या चीज़ है वो? वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज। कई अक्षर होते हैं जो कन्फ्यूज होते हैं, सोच कर हड़बड़ा जाता है क्या चीज़ें हैं, और उसको मिस यूज़ करते हैं, अच्छी तरह से उसका आप इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते। वर्ड है, उनके प्रोनाउंसिएशन जो हम जैसे उसको बोलते हैं वो एक ही तरह के हैं, मगर उनके मीनिंग जो उनका मतलब है वो बिल्कुल अलग है, और इसके अलावा उनके जो स्पेलिंग है वो भी अलग होते हैं, मगर प्रोनाउंसिएशन एक होती है, जिससे हम धोखा खा जाते हैं। तो आज वो हम नई चीज़ शुरू करने लगे हैं। देखिएगा, आज मैंने जो शुरू किया है, दो सेंटेंस लिया है। कोई वर्ड के हमने दो सेंटेंस लिए हैं। आपको पता है कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज़ होगा, तो उस हिसाब से मैं कहती हूँ आपको, मैं अपने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आप भी उसको समझने की कोशिश कीजिए और थोड़े प्यार से और ध्यान से मेरे काम को देखिएगा। चलो लेट्स बिगिन विद टुडे वर्ड। आई हैव टेकन टू सेंटेंस ऑफ बोथ द वर्ड्स। इन वन सेंटेंस देयर आर 2 words given. Pronunciations are the same, but the meanings and the spellings are totally different. So I have taken two sentences of each one. So you will know which word is going to set in which sentence according to that. I am trying my best to teach you in a simple and easy way. So please help me to help you in your work, and you do the grammar portion as fast as you can learn it easily. So please, let's begin with the first sentence. What is it? Words often confused and misused. The words are given, pronunciation is the same, I told you, but the meaning and the spelling are totally changed. So how we use them? Just first sentence. All accept, A-double-C-E-P-T, accept, accept, E-X-E-P-T, accept, accept, Roman where present. Now, what is the difference between it? Accept means to receive it. If you get something, you say, okay, I accept it. Accept other than this one. We will say like that. So what will be wrong? All, not accept. We are not going to receive it, but we are going to another than that. Accept. Roman word present. पहला सेंटेंस देखिए, ऑल एक्सेप्ट ए के साथ है, A-double-C-E-P-T है, और दूसरा E-X-E-P-T, एक्सेप्ट है। दोनों में क्या बोला? एक्सेप्ट मैंने हम किसी चीज को मान लेते हैं, कबूल करें, हाँ जी मैं ले लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, मैं कबूल करता हूँ, उसके लिए। एक्सेप्ट मीन्स इसके अलावा। तो उसमें क्या आएगा कि सारे बच्चों के में रमन के अलावा बहुत सारे आए थे, तो क्या आएगा? ऑल एक्सेप्ट रमन वे प्रेजेंट। तो ये आ गया। दूसरा देखिए, वही चीज है, एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट। वैसे इसको कैसे यूज करना है? पहले मैं ई का वाला यूज किया, दूसरे में देखिए, वी कैन नॉट एक्सेप्ट एक्सेप्ट योर ऑफर। तुमने जो हमें बोला है, जो तुम ऑफर दे रहे हो, वो हम उसको मानेंगे नहीं, कबूल नहीं करेंगे। तो हम उसमें क्या लगे? A-double-C-E-P-T, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन उसके अलावा होगा ना, तो हम उसको मान नहीं रहे। जो तुम बोल रहे हो, तुम जो ऑफर दे रहे हो, हम उसको मान नहीं रहे। Second tense, we cannot accept your offer means what you are giving us. So we are not going to receive it. We are not going to take it. So instead of accept, we will say accept. We are not going to accept your offer. What your offer you are giving, we are not going to take it. Third one. Do not spit on the floor. F-L-O-U-R, F-L-O-O-R. Both are the pronunciation same, meaning and spelling are different. Do not spit on the floor. F-L-O-U-R and F-L-O-O-R. So what is the floor? Floor means the base of the room. So what will be the F-L-O-O-R? अगला देखिए, do not spit on the floor. F-L-O-U-R तो F-L-O-O-R है।
बोलते हैं हम एक ही तरह मगर मीनिंग और स्पेलिंग अलग है। स्पिट करने में थूकना, वे कहते हैं किस पे मत थूको, फर्श पे। तो जो FLOOR फ्लो है वो है फर्श, फर्श के ऊपर मत थूको, तो उसमें ये आएगा। अगला देखिए, ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लो, उसमें भी दोनों वही चीज है। ये तो हो गया था फर्श, तो दूसरा क्या है, आटा, जिसे हम कहते हैं आटा, गेहूं का आटा जिसे कहते हैं उसको। तो क्या आएगा, ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लो, FLOUR फ्लो। Now next one is bread is made of flour. What are the same? So bread is what is made from wheat. Grinded wheat is flour. So what we use, bread is made of flour, FLOUR. It will be the correct answer. Stephenson invented the steam engine. Discover means to go and find out something. Invent means to make something. There are difference between it. Discover and invented. So what it is, Stephenson what he discovered it or invented it? He didn't find it, but he made it by himself. So he invented the steam engine. अब अगला देखिए, स्टीफनसन डिस्कवर इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। डिस्कवर में किसी चीज की खोज करना, हम नई चीज की खोज करना। इन्वेंट है ना बनाना, नई चीज की उसारण करना। हम तो स्टीफनसन ने क्या बनाया था, स्टीम इंजन बनाया था, भाप से चलने वाला इंजन बनाया था। तो उसमें क्या आ जाएगा, इन्वेंटेड आएगा, डिस्कवर नहीं होगा। उसने बनाया था, इन्वेंट किया था, उसकी शुरुआत की थी, उसको बनाया था उसने। अगला देखा, कोलंबस डिस्कवर्ड इन्वेंटेड अमेरिका। अब कोलंबस था, सुना होगा आपने कोलंबस के बारे में। तो उसने क्या किया है, डिस्कवर किया था, इन्वेंट, उसको अमेरिका मिला था या उसने उसे बनाया था। तो हमें क्या मिला था उसको, उसने उसकी खोज की थी, डिस्कवर किया था। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। नेक्स्ट सेंटेंस इज कोलंबस डिस्कवर्ड इन्वेंटेड अमेरिका। नाउ ही डिडंट मेड इट, he didn't made it. Columbus, you have heard about Columbus, I think so. He went out in search of other countries and other people. So what he did, he discovered it. Who discovered? Columbus discovered America. Next, you will break my slate. Now there are two, BRAKE, BREAK. Both are pronunciation same, meaning different. So what will you do? BRAKE means this is not the break, but you are going to break my slate. BREAK. अगला देखिएगा, you will break my slate. दोनों के बोलना था एक ही चीज, हम प्रोनाउंस करते हैं मगर उसके मीनिंग और स्पेलिंग अलग है। कहते हैं कि तुम मेरी स्लेट को तोड़ दोगे। तोड़ने की क्या रही, ब्रेक, BREAK, कि तुम मेरी स्लेट को तोड़ दोगे। Has your bicycle no brake? हमारे पास, सबके पास घर में साइकिलें होती हैं, बाइसिकल होते हैं, मोटरसाइकिल, सब कुछ होता है, उसमें ब्रेक लगते हैं। हम ब्रेक लगाते हैं तब वो चीज जो है, पावे साइकिल या स्कूटर, वो खड़ा हो जाता है, रुक जाता है। तो उसने क्या, हैज योर बाइसिकल नो ब्रेक। तो कौन सा ब्रेक आ जाएगा इसमें, BRAKE, ये ब्रेक आ जाएगा उसमें। सेकंड, नेक्स्ट वन इज हैज योर बाइसिकल नो ब्रेक। एवरीबॉडी हैज ए साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल। To stop the running in running condition, to make it stop, we use the brakes. So what is the spelling of the brakes? This one, BRAKE. So he is asking, what you have not, your bicycle has no brakes, means to stop it, but where are your brakes? He is asking for that, BRAKE. Next, the cattle are grazing in the park. What is the difference between it? Cattle, these are herd of sheep, cow, whatever it may be, and this cattle is to boil something. So but they were grazing. Who are grazing? These cattle, CATTLE. These are cattle grazing in the park. अगला देखिएगा, the cattle are grazing in the park. ये cattle होते हैं झुंड, हम जैसे कहते हैं पशुओं का झुंड है, गऊ, लैलम, भेड़ वगैरह जो जब जाते हैं वो झुंड में जाते हैं तो cattle कहते हैं। कि ये cattle वो है केतली, जिसे हम हिंदी में कहते हैं केतली। तो कहते हैं दोनों में, उसने कहा कि तुम जो जानवर होकर जाएंगे पार्क में जाके घास खाने के लिए, तो उसके लिए ये से कैटल, CATTLE आएगा। तो ये इसमें फर्क है। लास्ट में, दे बॉयल सम वाटर इन ए कैटल। अब आपको मालूम हो गया पानी किसमें करेंगे, इस कैटल में करेंगे। तो उसने कहा कि पानी किसमें करें, CATTLE में, कैटल में आ जाएगा। द लास्ट सेंटेंस, दे बॉयल सम वाटर इन ए कैटल। नाउ यू नो द डिफरेंस, what are the cattle and that cattle, C and K. So in this you will put the K1, KETTLE. To boil something you have to use a pot, it is called a kettle, so we use it, kettle. Now these are the 10 sentences, we have done it according to that
Same words are given and same are explained in different sentences. I know better that you will know and understand it nicely in so. मैंने आज जो 10 सेंटेंस कराए एक एक वर्ड वही ना साथ साथ लिए उनके दो दो सेंटेंस बना दिया आपको ये दिखाने के एक किसमें कौन सा वर्ड यूज आता है। तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आते भी होंगे, ये नहीं मैं कहती नहीं आते भी होंगे, मगर अब क्लियर भी हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ दीज आर द 10 थिंग what I have done today. I think you have enjoyed it and like it. If you like it and enjoy it, please like it, share it, comment it and subscribe my channel. Thank you.